A very good morning to the students of 11th class. Here your English teacher, elective English teacher Miss Paramveer Kaur. Yesterday we have started the countable and uncountable nouns, and I hope till now you have understood what do we mean by countable and uncountable noun. So for today we are going to discuss the detailed explanation of countable and uncountable nouns, and we will start with the use of many and much. Earlier you learned that we can use many with with countable nouns. ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਾਊਂਟੇਬਲਸ ਨਾउन ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਨ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਪਲੂਰਲ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਪਲੂਰਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਯੂ ਆਲਸੋ ਲਰਨਡ ਦੈਟ ਮੈਨੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਵਿਦ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾउन्स, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾउन्स ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾउन ਸੀਗਾ ਕੱਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੈਨੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੀ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਟੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ऑल राइट, वट वी कैन यूज़ मच विद अनकाउंटेबल नाउन्स, पर आप जो मच है वो कितने यूज़ कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के नाल अदर देन प्रॉपर नेम्स, जोड़े कि प्रॉपर नेम्स के होंगे सच एज मच मिल्क, मच ब्रैड, मच न्यूज़। ये नाल की आप यह चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इन मॉडर्न इंग्लिश मैनी एंड मच आर जनरली नॉट यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसिस। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਡਰਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਚ ਅਤੇ ਮੈਨੀ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਵੇ, ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਮੀਨਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੇ ਆਰ ਫਰੀਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਮਚ ਔਰ ਮੈਨੀ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਮੈਨੀ ਔਰ ਮਚ ਦ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਜਨਰਲੀ यूज्ड। कहते जोड़े पॉजिटिव सेंटेंसिस आ उहदे विच मैनी और मच की जगह पर आप यूज़ करते हैं अ लॉट ऑफ। ये न्यू वर्ड है, ये आप यूज़ करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसिस दे विच, पर्टिकुलरली इन स्पोकन इंग्लिश, स्पैशली कि स्पोकन इंग्लिश दे विच। इन अफर्मेटिव सेंटेंसिस मच इज़ इवन लैस कॉमन दैन मैनी। ਜਿਹੜੇ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਚ ਮੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। हाँ जी, नैक्सट की है एक एक्सरसाइज दी है, ये फिल करना मच और मैनी दे नाल। ऑल राइट, हाँ जी नैक्सट देखते हैं। कहते फॉर एग्जाम्पल न्यूज़ एंड ब्रैड आर रिगार्डेड एज अनकाउंटेबल थिंग्स इन इंग्लिश। न्यूज़ ते ब्रैड दोवें अनकाउंटेबल थिंग्स ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੈਡ ਵੀ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। दैट्स वाई द वर्ड्स न्यूज़ एंड ब्रेड्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स इन इंग्लिश, बट द वर्ड्स समाचार रोटी आर काउंटेबल इन हिंदी और पंजाबी। कहते मन्निया कि जोड़े न्यूज़ ते ब्रैड अनकाउंटेबल नाउन्स आ इंग्लिश दे विच, पर पंजाबी ते हिंदी दे विच दोवें काउंटेबल नाउन्स आ। फर्दर इन इंग्लिश इस तो इलावा इंग्लिश दे विच बिस्किट इज़ अ काउंटेबल नाउन। बिस्किट की एक काउंटेबल नाउन आ, बट जो ब्रैड आ वो की है अनकाउंटेबल नाउन आ। That's why it is useful to speak of countable and uncountable nouns, not countable and uncountable nouns। चलो आप गल करते हैं हुण राजे काउंटेबल ते अनकाउंटेबल नाउन्स दी। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे कुछ सेंटेंसेस दिते उहदे ते ध्यान दो। शी बॉट आ न्यू पिंक ड्रैस एंड मैचिंग सॉक्स। नाउ इत्थे पिंक ड्रैस आ मतलब एक ड्रैस आ, ये आ गई फ्रॉक आ गई। ओके, सैकेंड आर टीचर डज नॉट पे मच अटेंशन टू द ड्रैस मतलब क्लोथिंग। पहले च की है पिंक ड्रैस मतलब एक ड्रैस वाल इशारा। सैकेंड दे विच की आ गया कि आर टीचर डज नॉट पे मच अटेंशन टू द ड्रैस मतलब क्लोथिंग आ गया इत्थे। मतलब हुण क्लोथिंग कितनी है, क्लोथिंग अनकाउंटेबल हो गया, फ्रॉक की हो गया राजे काउंटेबल हो गया। देखो यू फाइंड दैट ड्रैस हैज़ बीन यूज्ड एज काउंटेबल नाउन, ड्रैस नूं एज ए काउंटेबल यूज़ किया वा, जद कि फ्रॉक नूं की आ ਜਿਹੜਾ कि फ्रॉक ਉਹਨੂੰ काउंटेबल आ एज, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ क्लोथिंग ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ अनकाउंटेबल नाउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ। often from the meaning of words you can make intelligent guess as to where they are countable or uncountable। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਗੈਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾउन ਆ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਆ ਕਿ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾउन।
हाँ जी नैक्सट देखो एक्सरसाइज 20 ये ध्यान ना सुनियो कहते सम वर्ड्स आर गिवन बिलो अलॉन्ग विद देयर मीनिंग्स नीचे कुछ शब्द दिते हैं तो उन्होंने मीनिंग भी दसे हुए आ फ्रॉम द मीनिंग्स गैस वैदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल तुसीं इहनूं गैस करना है कि ये काउंटेबल नाउन्स ने कि अनकाउंटेबल्स ने मैं तुहानूं 2-3 करके दिखा दिंदी हाँ ऑलराइट पहला देखो पहला वर्ड की है अपने को पहला वर्ड है राजे ड्रैस हुण ड्रैस की आ गया अपने को क्लोथिंग ओके हुण क्लोथिंग की हो सकती है मतलब कपड़े कपड़े तो किन्ने भी हो सकते हैं सो एक ही हो गया तुहाडा अनकाउंटेबल हुण एक आ गई ड्रैस की आ गया अ फ्रॉक फ्रॉक की आ अ फ्रॉक मतलब एक फ्रॉक एक ही आ गया तुहाडा काउंटेबल नाउन सैकेंड देखो सैकेंड है फिश फिश की है इत्थे अ वाटर एनीमल हुण वाटर एनीमल हो गया फिश हुण समुद्र दे विच तां कितनियां ज़्यादा फिश ने आपां गिन नहीं ना सकते सो एक ही हो गया अनकाउंटेबल राइट साइड देखो दिता है फिश विच मीनस की हो गया फिश एज फूड हुण एज ए फूड दे विच आपां फिश गिन सकते हैं कि एक ने दो ने कि तीन ने ओके सो एक ही हो गया काउंटेबल तो एज ए वाटर एनीमल की हो गया अनकाउंटेबल ਜਿਹੜੇ बाकी ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੋ ਤੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾउन्स ਨੇ हाँ जी नैक्सट है अपना मेन जेंडर ओके स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस चलो आप पहले नीचे वाले सेंटेंसेस पढ़ते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज बॉर्न इन स्कॉटलैंड इन 1881 ही डिड वेरी वैल एट स्कूल कि उन्होंने जन्म अलेक्जेंडर का कदों होया सीगा स्कॉटलैंड दे विच 1881 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਵੈਨ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਹਰਡ ਆਲ ਦਿਸ ਸ਼ੀ ਫੈਲ ਟੂ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਲਾਈਕ ਅ ਪਲੇਨ ਟਰੀ ਜਦੋਂ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਇਦਾਂ ਡਿੱਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਟਰੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ but see example but instead of throwing away the ruined culture Fleming put it under his microscope कि उन्हें जो रूइंड तबाह हो चुके कल्चर वो करने की बजाय सुट्टन की बजाय उन्हें की किया सीगा आपदे माइक्रोस्कोप के हेठां रखिया हुण देखो इन दी अबव सेंटेंसिस कहते जो उपर सेंटेंसिस आ उहदे विच तुसीं आसानी नाल देख सकते हो इन दी फर्स्ट सेंटेंस ही रिप्लेसिस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग देखो 1881 तो बाद फुल स्टॉप है उस तो बाद ही आ गया ही मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ही ने रिप्लेस किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नूं सैकेंड दे विच की सीगा कौशल्या इनू रिप्लेस की नहीं किया शी ने बिकॉज शी इज़ अ गर्ल तां करके आपां शी प्रोनाउन इत्थे यूज़ किया थर्ड की सीगा कल्चर कल्चर की आ गया एक तरह नाल न्यूट्रल नाउन इनू की ने रिप्लेस कर दिता वा इनू इट ने की इत्थे रिप्लेस किया वा Alright, so he replaces Alexander Fleming, she replaces Kaushalya and it replaces ruined culture. देखो we note that Alexander Fleming, Kaushalya and ruined culture are all nouns in the third person singular number and they require 3 different pronouns he, she, it to replace them. कहते ये तिन्ने दे तिन्ने किया थर्ड पर्सन दे किया सिंगुलर नाउन्स आ तो इन्हों रिप्लेस करने के लिए आप किहड़े प्रोनाउन यूज़ किए हैं आप यूज़ किया अलेक्जेंडर के लिए ही कौशल्या के लिए शी एंड रूइंड कल्चर के लिए इट We may therefore say that English has a system of gender with 3 different terms. कहते इस तरह इंग्लिश के विच की है 3 डिफरेंट टर्म्स के लिए एक जेंडर बनया होया वा वो जेंडर केड़ा वा देखो 3 तरह के होंगे राजे मैस्कुलिन फैमिनिन एंड न्यूटर मैस्कुलिन रिलेटेड विद द मेल्स कि जिहड़ा मेल्स दे नाल संबंधित आ फैमिनिन रिलेटेड विद द फीमेल्स जिहड़ा फीमेल नाल रिलेटेड होएगा ते न्यूटर की हुंदा वा वो जेंडर जिहड़ा कि दोवां दे लई यूज़ हुंदा वा इन कॉमन दे विच देखो मैस्कुलिन जेंडर अप्लाई टू नाउन्स वैन सिंगुलर कैन बी रिप्लेसड बाय ही वो नाउन ਜਿਹੜੇ सिंगुलर ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾउन ਦੇ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਸਕੂਲਿਨ ਜੈਂਡਰ ਫੈਮਿਨੀ ਅਗੇਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਦਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿਸਟਰ ਅਗੇਨ ਵੀ ਕੈਨ ਰਿਪਲੇਸ ਇਟ ਵਿਦ ਸ਼ੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਰ ਜੈਂਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਪਲਾਈਡ ਟੂ ਨਾउन्स when singular can be replaced by it ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾउन ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਗਾ ਰੂਇਨਡ ਕਲਚਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆਲਰਾਈਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਟਰ ਜੈਂਡਰ ਆ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਨਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ
ऑल राइट। सो ये चीज़ तुसी की ध्यान दे विच रखनी है। हाँ जी, हुण की है नीचे उन्होंने कुछ एप्रोप्रीएट प्रोनाउन दिते हुए आ, आपां ये यूज़ करने इन्हां ब्लैंक्स दे विच। चलो लेट अस डू दिस एक्सरसाइज। Okay, Akbar was only a boy of 13 when his dash succeeded his when dash succeeded father। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਅਕਬਰ ਵਾज ਓਨਲੀ ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਅਕਬਰ ਕੀ ਮੇਲ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਵੈਨ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਹੀ। ਵੈਨ ਹੀ ਸਕਸੀਡਡ ਡੈਸ਼ ਫਾਦਰ। ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿਜ਼ ਦਾ ਕੀ, ਹੀ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਿਜ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਵੈਨ ਹੀ ਸਕਸੀਡਡ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ, है ना। वैन सीता हर्ड ऑल दिस, ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਸੀਤਾ ਕੀ ਆ, ਫੈਮਿਨੀ ਨਾउन ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਨਾउन ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਸ਼ੀ। all of this she spoke out। all right, Fleming found out that when the penicillin mold was diluted 800 times, dash was effective as a germ killer। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਸਿਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਵੈਨ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਮੋਲਡ ਵਾਜ਼ ਡਿਲੇਟਡ 800 ਟਾਈਮਸ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਜ਼ ਅ ਜਰਮ ਕਿਲਰ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਇਟ। फोर्थ, we have a duty towards our motherland, we must protect dash from foreign aggression। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਮਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰਫ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, we should protect it from foreign aggression। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਜੇ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਲ ਰਾਈਟ, हाँ जी, एक मिनट ध्यान ना देखो। जिवें आपां कहा सीगा कि आपां स्टूडेंट की है, स्टूडेंट मेल भी हो सकता, फीमेल भी, उन्होंने आपां दोवां लई यूज़ कर सकते हैं। इस तरह कज़न, टीचर, फ्रेंड, डॉक्टर, टाइपिस्ट, कुक, स्टूडेंट, ये भी की है दोवें मेल ते फीमेल दोवां लई यूज़ होंदे आ, तां करके इन्हां नूं आपां दोवां दे विच यूज़ कर सकते हैं। प्लस इन्हां नूं आपां काहदे नाल रिप्लेस कर सकते हैं, ये न्यूट्रल दे विच अपने कोल आके काउंट होंदे आ। यू विल यूज़ ही, हिम, हिज टू रिप्लेस दैम इफ द रेफरेंस टू अ मेल कज़न। ओके, यू विल यूज़ शी, हर इंस्टेड ऑफ रेफरेंस टू अ फीमेल। अगर तो कहते कज़न, टीचर, फ्रेंड, डॉक्टर, इन्हां दा इशारा मेल वाला, तो आप इन्हां नूं ही दे नाल ते हिज नाल रिप्लेस करांगे। अगर इन्हां दा इशारा फीमेल दे वाला, तो आप इन्हां नूं शी ते हर नाल रिप्लेस करांगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो ये तुहाडा अज दा सीगा काउंटेबल ते अनकाउंटेबल दा। इनू चंगी तरह राजे एक बार तुसीं की कर लियो, रीड कर लियो। गॉड ब्लैस यू बेटा।